پاکستان چوک آج ہم نے ایسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں پہ ٹریفک ہم نے بلاک کر دی ہے، جو کہ بہت زیادتی کی لوگوں کے ساتھ، اور جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ طارق روڈ ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے ہم۔ بجٹ کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اربوں خربوں کا بجٹ آ گیا، اتنا ڈیفیسٹ ہو گیا، جی ڈی پی ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، کسی کو کچھ خاص سمجھ نہیں آتی ہے۔ عوام کو ملتا کیا ہے بجٹ سے؟ ویسے تو بجٹ ہر 15 روز کے بعد آ جاتا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا۔ عوام بھی امیون ہو چکے ہیں اور عوام بھی دیکھتے رہتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پھر بیچارے گھر چلے جاتے ہیں اور سننے والا کوئی نہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کوٹ کیا تھا ایک انسیڈنٹ، وین آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر، تو مشاہد حسین سید صاحب اور ملیہ لودھی صاحبہ، ڈاکٹر ملیہ لودھی، مسلم اخبار میں کام کیا کرتی تھیں۔ یہ دونوں آرٹیکل اگر کوئی لکھ لیا جائے اوپینین پیجز پہ تو حکومت جو ہے وہ پوری ہل جاتی تھی۔ فون آنے شروع ہو جاتے تھے مشاہد حسین سید صاحب کو بھی، ڈاکٹر ملیہ لودھی کو بھی، اور پوچھا جاتا تھا، چاہے پریزیڈنٹ ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو یا کوئی منسٹر ہو، پوچھا کرتے تھے کہ جی کیا پرابلم کیا ہوگی، ہم اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، الیکٹرانک میڈیا تو اس وقت ہے نہیں تھا، لیکن الیکٹرانک میڈیا کا ہم کہتے ہیں جی کہ الیکٹرانک میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن شاید حکمرانوں کے لیے نہیں ہوتا۔ حکمران پوچھتے نہیں ہیں کہ جی کیا درست کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا پروبیبلی وہ بھی ایک تھرمومیٹر لگا کے بیٹھے ہوئے عوام کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب زیادہ عوام چلانا شروع ہو جائے تو پھر شاید کوئی تھوڑا سا ٹیمپریری ریلیف مل جاتا ہے، لیکن ایز سچ پرماننٹ سولوشن کسی چیز کا نہیں ملا، اور خاص طور پہ پچھلے 4-4.5 سال میں تو نہیں ملا۔ اب سارے الزامات ہم لگاتے رہیں، کرٹیسائز گورنمنٹ کو کرتے رہیں، تو میرے خیال میں ساری رات گزر جائے گی۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پاور گیم از ڈفرینٹ۔ حکمرانی کانٹوں کی سیج ہے، لیکن پریزیڈنٹ آپ کا، پرائم منسٹر آپ کا، اسپیکر آپ کا، 3 صوبوں میں حکومت بھی آپ کی، چوتھے صوبے میں بھی کسی حد تک حکومت آپ کی۔ اس میں ایک کوشچن مارک ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن چوتھے صوبے میں بھی حکومت کسی حد تک آپ کی ہے۔ اسمبلی میں شور مچانے سے یا بجٹ پیش کرتے وقت شور مچانے سے تکلیفیں دور نہیں ہو جاتی عوام کی، تھوڑا سا ڈیکورم بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن احتجاج کیا، عوام کا احتجاج اسمبلی کے اندر کیا گیا، اس کو مختلف طریقوں سے لیا گیا، لیکن حق ہے اپوزیشن کا، سو کالڈ اپوزیشن کا حق ہے، کیونکہ اب اپوزیشن واقعی ہی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن پہلے یہ اپوزیشن کہاں تھی؟ جب کئی مرتبہ حکومت کو ایک بریدنگ سپیس چاہیے ہوتا تھا، ریلیف چاہیے ہوتا تھا، تو یہی اپوزیشن ریلیف دیتی تھی گورنمنٹ کو۔ نہیں تو میرے خیال میں آج حالات کچھ مختلف ہوتے۔ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے گی اس لیے ہم نے ساتھ دیا، جمہوریت ڈی ریل نہ ہو جائے اس لیے ہم نے ساتھ دیا۔ بڑی پیٹی ورڈز ہیں، بڑے پیٹی سینٹنسز ہیں، ہم سن کے ویسے تنگ آ چکے ہیں اس کو، لیکن کوئی فوج اس قسم کے ایڈونچرزم کرنے کے لیے تیار نہ تھی نہ ہے۔ سو فوج بالکل آنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے یہ سینٹنسز بالکل آبسولیٹ ہو چکے ہیں۔ میں لمبے چوڑے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، لائیو کالز آپ کی ضرور لوں گا، اور کچھ بندوبست ہم نے ایسا کیا ہے کہ روڈ پہ بھی آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ان کا انٹروڈکشن کراتا چلوں۔ یہ نصرت سحر عباسی صاحبہ میرے خیال میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، شکریہ ان کا میں بعد میں کروں گا کیونکہ شی از آلویز بین ویری کائنڈ اور بڑے شارٹ نوٹسز پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اینی ویز میں کر دیتا ہوں، تھینک یو۔ کوثر عامر صاحبہ جی آج کل بڑا
زور و شور سے آپ میڈیا میں ان کو دیکھ رہے ہیں, اور میڈیا میں جس طریقے سے یہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہی ہیں آج کل. پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ بھی یہاں پہ سڑک پہ پہنچ گئی ہیں. ناہید بیگم صاحبہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائیں. اور جب الیکٹ ہوئی تھی اس وقت میں نے انہیں کہا تھا میرے پاس آئیے گا, آتے آتے انہیں تھوڑی سی دیر ہوگی. ناز بلوچ صاحبہ بہت زبردست گرلنگ کرتی ہیں, اور گرلنگ پتہ نہیں, گرلنگ مطلب آپ کو باربیکیو کا شوق تو نہیں ہے؟ نہیں. جو سامنے آ جائے اس کی گرلنگ بہت کرتی ہیں. عوام ہے نا, عوام تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم عوامی نمائندے ہیں آفٹر آل. عوام اتنی پک گئی ہے کہ اب گرلنگ کرنا شروع کر دیا عوام نے. اچھا. پروین بصیر صاحبہ جی مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں جی. آپ سب لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں, لیکن میں پوچھنا پہلے یہ چاہوں گا حکومت سے, حکومت کی نمائندگی یہاں پہ ہو رہی ہے کوثر عامر صاحبہ سے, ان سے پوچھنا چاہوں گا, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا پہلے, اور ول لائک گو فار 3 منٹس ایچ. سب بات کریں گے, لیکن میں پہلے حکومت کو اس لیے چانس دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ ذرا بول دے, بتا دے کہ آپ نے 3 منٹ کے اندر اندر مختصر سا مجھے بتا دیجیے گا, لوگوں کو بھی بتا دیجیے گا, اور جو ہمارے ویورز ہیں کیونکہ لائیو شو ہے ان کو بھی پتا چل جائے کہ آپ لوگوں نے عوام کو کیا ریلیف دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی, ریلی پلیجر کہ آج آپ نے بلایا, اور واقعی ہمارا موقف سنا اور جو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے جس طرح سے, اور مجھے افسوس ہے تھوڑا سا, یہ تو نہیں کہ پارٹی نے کام نہیں کیا ہے, 4 سال میں بہت کچھ کر کے دکھایا ہے. سب سے پہلے تو 1973 کا جو ہمارا آئین تھا جو بالکل پورا بدل دیا گیا تھا, ان کو ہم اصلی صورت میں لے کر آئے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پہلا کیبنٹ ہے جس نے 5 سال کے اندر پانچویں بار خطاب کیا ہے اسی پارلیمنٹ کے اندر. یہ بھی پارٹی کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور بہت کریڈٹ جاتا ہے پارٹی کو. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 4 سال 2 مہینے پورے کیے, اس پہ میں ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں, اور میری پارٹی کو بھی اس حوالے سے مبارکباد دینا چاہوں گی, کیونکہ لیاقت علی خان صاحب نے 4 سال 2 مہینے پورے کیے تھے, اور ایک ہمارے پرائم منسٹر ہیں کہ جنہوں نے 4 سال 2 مہینے پورے کیے, ایک جمہوری حکومت کو آگے لے کر چلے. تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے ونس اگین. اب ہم نے کیا کر کے دکھایا, بہت کچھ کیا ہے. NFC ایوارڈ کو ہم نے کیا لے کر آئے, صوبوں کو ہم نے اختیارات دیے, صوبوں کو ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. ہم نے بلوچستان کے اندر جو ایک محرومی تھی, جو اس سے پہلے بلوچستان کے اندر ایک ڈر تھا, خوف تھا, لوگ اسمبلی میں اس حوالے سے بات نہیں ہوتی تھی, اس کو ہم نے آگے لے کر آئے, اس کو ہم نے اس کے حوالے سے بات کی, اس پر ہم نے لوگوں کا موقف سنا اور اسمبلی میں ان کا موقف حل کیا, ان کو پیکیجز دیے. بلوچستان اور میں لے لیں آپ, بلوچستان کے اندر بھی ماشاءاللہ ہماری پارٹی نے بڑے اچھے نمبروں سے سویپ کیا اور جیت کے دکھایا. اب اس سے پہلے ملتان کے اندر 30 سال سے جو سیٹ کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی تھی, وہ ہم نے اس بار جیت کے دکھائی. تو عوام ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں ہر چیز کو ایک وقت لگتا ہے. جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت ہمارے قائد نے ایک بہت اچھا نعرہ لگایا تھا, پاکستان کھپے. دیٹ مینس ہمیں پاکستان کو لے کے چلنا ہے, اس کو ملا کر, سب پارٹیز کو ملا کر لے کر آگے بڑھنا ہے. اب جو ہم نے عوام کو ریلیف دیے وہ آپ دیکھ لیں کہ 20% ہم نے اضافہ کیا سیلریز کے اندر, پینشن میں بھی ان کا اضافہ کیا, 2000 کے قریب ہم نے یوٹیلیٹی اسٹورز کھولے ہیں, ہم نے ایجوکیشن جو غریب طبقہ ہے اس کے جتنے بھی ٹیکسز تھے وہ معاف کر دیے ہم نے. اس کے حوالے سے جو بجلی کا ایک بہت بڑا بحران تھا 183 بلین آلموسٹ, ہم نے وہ بحران کا مسئلہ سیٹل کیا. FPCCI کے اندر آپ دیکھیں وہاں کے جبار صاحب نے کنگریچولیٹ کیا ہے پارٹی کو اور ان کو ویلکم کیا ہے کہ اس بار کا بجٹ بہت زبردست آیا ہے. آپ بنگلہ دیش اور انڈیا کے حوالے سے کمپیئر کرتے ورلڈ بینک نے ہماری پارٹی کو رپورٹ دی ہے, رپورٹ پیش کی ہے کہ دس پاکستان از ڈوئنگ ویری ویل, اور وہ ایک بہت اچھا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے اور بہت اچھے نمبرز پر قائم اور دائم ہے. اسی طریقے سے ہر طرح سے ایک اسٹیبل اکنامی پاکستان کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے ہر ایک فورم پر. تو میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا اقدام ہے پارٹی کا. اچھا چلیں, آپ کہتی ہیں تو فی الحال تو ہم مان لیتے ہیں,
क्योंकि और भी बहुत हजारों चीजें आप कहें तो मैं पूरा बजट के अंदर 50,000 चीजें आपको बता दूं जो कि हमने माशाल्लाह की है। मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगा जी, क्योंकि अभी सोलर ट्यूबवेल से हमने सब्सिडी दी है, इसके हवाले से सोलर ट्यूबवेल को हमने उसके हवाले से जो है लेकर आ रहे थे कि जो बिजली का मसला है वो हम पहला टेन्योर आपका खत्म होने वाला है और इस टाइम भी आपका खत्म होने वाला है। मैं जरा MQM की तरफ चलूंगा जी, उनसे पूछूंगा। आपने सुन लिया जी कौसर बीबी क्या कह रही है? वो तो कह रही है कि बहुत अच्छे की रिपोर्ट है, सब अच्छे की रिपोर्ट है। आप इस चीज से मुतमईन है? शैडो बजट आप लोगों ने भी दिया है। देखिए, बजट किसी भी मुल्क की पॉलिसियों का आईनादार होता है। इस बजट से आप मुत्तफिक है? आपके ख्याल में ठीक है? मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं आपको अपना मौक़िफ़ बताती हूँ कि बजट किसी भी मुल्क की मुआशी पॉलिसियों का आईनादार होता है। सबसे पहले अगर जिस तरह से हमारी पॉलिसीज़ हैं, अगर हम उसकी डायरेक्शन को दुरुस्त नहीं करेंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमें किस सेक्टर में किन लोगों को रिलीफ पहुंचाना है, अगर हम ये चीज़ें सेट नहीं करेंगे तो हम कभी भी अवामी उमंगों के मुताबिक बजट नहीं पेश कर सकेंगे। मैं आवाम को धोखे में नहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि आप देखें कि हमारी पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक शैडो बजट, जो कि आज तक किसी भी सियासी पार्टी ने हिम्मत नहीं की कि शैडो बजट अपनी कोalition गवर्नमेंट में होते हुए हमने दिया है। और इसमें हमने बताया है कि प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। हमने बताया कि दिफाई बजट को किस तरह कम करके अपने अवाम को आप रिलीफ फराहम कर सकते हैं। हमने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पे आपने तकरीबन 2000 नए यूटिलिटी स्टोर्स खोलने की बात की, लेकिन उसके साथ साथ आपने यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू ही सब्सिडी दे रहे हैं ना आप, लेकिन जो फूड सब्सिडी आप 153 अरब की दे रहे हैं वो मॉनिटरिंग तो उसकी होती नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये कहा है कि पेट्रोलियम लेवी टैक्स भत्ता है, एक तरह से भत्ता लिया जा रहा है अवाम से, तो उसको भी रिड्यूस किया जाना चाहिए। हमने बताया है कि जिस तरह जीएसटी की मद में जो हम 16% टैक्स ले रहे हैं उसको रिड्यूस करके 12% पे लाया जाए। और इसके साथ साथ हमने अपने अवाम की उमंगों के मुताबिक बजट पेश करने की कोशिश की है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि वो हमारे प्रपोजल, हमारी सिफारिशात को इस बजट का हिस्सा बनाएंगे। और वज़ीर आला जनाब सैयद कायम अली शाह ने भी हमें यकीन दिलाया और उन्होंने तो कल बयान भी दिया है कि 80% हमारे जो प्रपोजल हैं, हमने फेडरल लेवल पे भी जो शैडो बजट पेश किया और प्रोविंशियल लेवल पे भी जो पेश किया है, उसके 80% प्रपोजल हम बजट का हिस्सा बनाएंगे। तो हम लेट्स सी के जो है वो अपने वादे को वफा कितना करते हैं। बिल्कुल हमने इनको वेलकम किया है कि बिल्कुल इस बार मिल के और पूरा पाकिस्तान के मैशत को संभालेंगे। अभी विल गो फॉर द लाइव कॉल्स ऑल्सो, और हम लोगों से भी बात करेंगे। और यहाँ पे हमें जरा यहाँ से आपको थोड़ी सी ज्यादा ग्रिलिंग फेस करनी पड़ेगी। नुसरत बीबी, आप बहुत अच्छा बजट है, आपने सही टाइम पे प्रोग्राम किया है। अव्वल तो बजट 4 साल जो गुजरा, 4 साल के बजट हम देख चुके हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने 4 साल के बजट पे बहुत ज़्यादा स्टडी किया, चीखे, चिल्लाए कि ये बजट जिस तरह था आवाम दोस्त बजट कहा जाता रहा, वो आवाम दोस्त बजट नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं कौसर की भी करूँगी, थोड़ी सी इनकी भी करूँगी जो मैं इतनी देर से सुन रही थी, नाहिद की भी। देखें, अगर कहा जा रहा है कि हमने शैडो बजट बना लिया या इन्होंने कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बजट है और आवाम दोस्त बजट है और हमने बहुत ज़्यादा आवाम को, अव्वल तो मैं आपको बताऊं कि बजट इस वक्त तैयार हो चुका है। हमेशा जब भी जो तजावीज़ ली जाती हैं या जो किसी से रिकमेंडेशन ली जाती हैं, वो बहुत पहले प्रोसेस होता है। आपको शायद पता होना चाहिए कि ये तो बुक्स बन गई, फिगर्स आ गई, सब कुछ तय हो गया। अब अगर शैडो बजट आए या कोई तजावीज़ दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमेशा हम असेंबली में ये चीखते रहे कि 2-3 महीने पहले हमसे पूछें, हम जो अवाम के नुमाइंदे हैं हमसे पूछें कि हमारे इलाके में क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत है, जो हमारे लोगों को वहाँ पर मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, वो हम आपको बताएं। उसके लिए एक तरीका हुआ था कि असेंबलीज में कमेटी रखी गई थी कि इनकी मीटिंग्स होंगी और आप लोगों से तजावीज़ ली जाएंगी। वो 1 साल रहा, वो ख़त्म हो गया। इसलिए ये कहना कि अब अगर कोई तजावीज़ दी गई है या कोई शैडो बजट आया है उसको इसमें रखा जाएगा, मुझे नहीं लगता। मैं नाहिद बिल्कुल आपसे कहूँगी, क्योंकि अब जब हम 8 तारीख को बजट सेशन में जाएंगे तो हमारी डेस्क के ऊपर वो बुक्स पड़ी होंगी, वो बैग्स बड़े बड़े पड़े होंगे, वो सीडीज पड़ी होंगी जिसमें फिगर्स आ चुकी हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है कि एजुकेशन पे कितना गया, शेयर अप गया, तालीम पे कितना गया, सेहत पे कितना गया, वो सब फिगर्स आ गई। अब आप इस पे बहस कीजिए
बहस आपकी कोई उसका अमल प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा, बहस कीजिए, तकारीर कीजिए, उसका कोई ऐसा एसेट कोई उसका अमल नहीं होगा उस बजट पे। तो ये होता है हमेशा अगर आपको बजट बनाना है, अवाम दोस्त बजट बनाना है, तो अवाम के नुमाइंदे जो असेंबली में बैठे हुए हैं उनसे आप तजावीज तो लें, उनके कंस्टिट्यूंसीज में क्या हो रहा है, किस चीज की जरूरत है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, क्या किस्म के वहाँ पे इश्यूज हैं, पहले वो उस बंदे से पूछे तो सही, उसके बाद बजट बनाए। होता है इसी तरह है, दूसरे ममालिक में ऐसे बजट बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जो पिछले साल का बजट होता है उसकी बुक्स को सामने रख के और उसके हिसाब से आपकी फिगर्स बनती। थोड़ा बहुत आप अभी भी बुक्स खोल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो एजुकेशन पे लास्ट ईयर का बजट रखा हुआ होगा उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट का इधर उधर हेर फेर होगा और आपकी फिगर सेम नजर आएगी, क्योंकि होता ये है कि बुक्स हम खोल के देखते नहीं है और जिस तरह की फिगर्स आ जाती हैं उसके हवाले से। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं मुबशिर, लास्ट ईयर का जो बजट आया था उससे एक बहुत बड़ी बहस हुई थी, जिससे मैंने भी बड़ी तकारीर की थी। हमने ये सीखा था कि देखिए 18 अमेंडमेंट हो गई, आप बार बार ये अपने ऊपर लेकर जाते हैं कि हमने 18 अमेंडमेंट करवाई, वेल डन, यू डिड गुड, लेकिन आपने उससे इम्प्लीमेंट क्या करवाया? आपने एनएफसी का बड़ा हमें बोला कि हाँ ठीक है, यस आपने एनएफसी पास करवा दिया, लेकिन एनएफसी की वजह से हमें मिला क्या? हम जो कहते रहे कि एनएफसी का जो शेयर है हमें मिलना चाहिए, आप तो कहते रहे कि हमने एनएफसी कराया, हमें कोई शेयर नहीं मिला। मुझे फिगर्स बता दें, मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर 3 अरब हमें एनएफसी के हवाले से मिलना था। हमारी स्कीमें जो सिंध की स्कीमें थी वो 3 अरब का 3 अरब यही वैसे का वैसे पड़ा। अगर आप खोल के पीएनडी में जाएं और देखें 3 अरब की स्कीमें वैसी पड़ी, वो यूटिलाइज ही नहीं हो सकी। इसके अलावा कितना 111 अरब का हमारा जो डेवलपमेंट का बजट था आप वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। 28% बजट आपका यूटिलाइज हो चुका, बाकी पैसा वैसे क्या वैसे पड़ा है। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसका कितना पैसा पड़ा है, वैसे का पड़ा, सब यूटिलाइज नहीं हो सका। एंटिक्विटीज है और कितने डिपार्टमेंट में नाम ले सकती हूँ कि उनके अमाउंट जितने भी अरबों खरबों में है वो वैसे पड़े, वो डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर पाया। मकसद कहने का ये है कि बजट तो हर साल आता है, थोड़ा है बड़ा है, इस चीज में नहीं जाते हैं लोग। मकसद ये कि आप उसको क्या यूटिलाइज कर पाते हैं? क्या 6 अरब अगर तालीम पे रखा तो 6 अरब तालीम पे गया? क्या 7 अरब जो कम रखा जाता है? दूसरे ममालिक में एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे ज्यादा बजट रखा जाता है। हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ पे एजुकेशन पे सबसे ज्यादा कटौती करके और हेल्थ पे सबसे ज्यादा कटौती करके रखी जाती है। इस दफा भी यही हुआ है। जो नेशनल असेंबली में बजट है आप उसकी फिगर्स देखें कि तालीम पे क्या रखा गया है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात मैं ये भी कहूंगी जो मुझे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ आता है, मेरी पार्टी को भी होगा, अवाम को भी होगा, कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की है वो क्या अमेंडमेंट की है कि जो भी प्रेसिडेंट, जो भी प्राइम मिनिस्टर 2 साल तक उसने हुकूमत की उसको वो तमाम मराहत मिलेंगी, जो ताहयात लाइफ अचीवमेंट उसको ये मिल गई कि वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनको वो तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी जो एक प्रेजेंट प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारा मुल्क तो इस कदर खसारे में जा रहा है कि 300 अरब तो हम रोजाना पैसा छाप रहे हैं। आपकी बैंक 300 अरब रोजाना डेली आपका पैसा छपता है। वो रुपया जब छपता है तो आप देखिए कि आपका इन्फ्लेशन कहाँ बढ़ जाता है। ये वो तमाम चीजें हैं, इसको आप सोचने की जरूरत है। सिर्फ ये तो नहीं है कि आप आवाम तो उस बजट कह के और आवाम को खुशी की ये हो गए। आप आवाम से पूछ लें, मैं भी आवाम की नुमाइंदा हूँ। आवाम इस वक्त बहुत तकलीफ में है, उसको कोई फायदा नहीं मिला। आप कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए तनख्वाह बढ़ा दी 9,000। मैं कौसर से पूछती हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रही है गवर्नमेंट को। प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहली स्पीच में कहा था, बजट स्पीच में, कि आज से हम 8,000 कर रहे हैं। किसकी? गरीब मजदूर की तनख्वाह। जो मुझे बताई कि कौन से मजदूर को आज तक 9,000 मिली, 8,000 मिली, जो अभी दोबारा अनाउंस किया गया कि 9,000। इम्प्लीमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप अमल दरामद कराएं इतने छोटे से बजट में भी तो शायद आवाम को रिलीज मिले, अदरवाइज ये सिर्फ किताबी बजट है। बड़ी वैसे लॉजिकल बातें, बड़े वैसे सवालात बताना चाहूंगी। मैं यही चाह रहा था आपसे कि अगर आप तालियां बजाना चाहें तो कोई मुजाहिका नहीं हो, कौसर भी बातें लॉजिकल करें। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपको बहुत टाइम है। एमपीए को पता होना चाहिए कि जो हमेशा नया बजट आता है तो वो कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट बजट होता है। सबसे पहली चीज ये है, सबसे बड़ी चीज ये, सबसे बड़ी चीज ये, दिस इज 3.91 कौसर है डिफरेंट पॉइंट। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ मिलियन। आ रहा हूँ, ठीक है, काम जो हुए सिर्फ सिंध के अंदर काम हुए, तो ये कह रहे कि काम हुए तो काम हुए हैं। मैं 1 मिनट आपकी पूरे मेरे पास रिकॉर्ड ऑफ काम है। आई नो यू हैव अ वेरी टफ जॉब,
You have a very tough job to defend the government. एक ये काम हुए लेकिन कागजों में हुए, कागजों में नहीं, मे भी मैं चक्कर लगा कर आई हूँ, आप मीडिया ले लें, आई एम देयर टू गो विथ यू, चले नाज बीबी, आप नाज बीबी को भी 3 मिनट दे दूँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मुबशिर साहब आपका कि आपने अवाम को मदऊ किया, और अवाम की ही आवाज़ है हम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की आवाज़ है, और बेहतर ये है कि अवाम सामने मौजूद है आज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बजट की जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी बजट डेफिसिट जो है दैट इज 7%, दैट इज नॉट 4%, जिसको मिसकोट करके 4% बताया गया। ऑलरेडी हम $60 बिलियन के मकरूज हैं, ऑलरेडी 1.1 ट्रिलियन का हमारे पर अलग खसारा मौजूद है। ये जो फिगर्स हैं इससे इस अवाम को कोई कंसर्न नहीं है। अवाम को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज चाहिए तो वो है रोटी 2 वक्त की, अवाम को चाहिए रहने के लिए मकान, अवाम को, हमारी जो यहाँ अवाम बैठी है इनको चाहिए तालीम, इनको अपने बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इनको बिजली चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, और इनको चाहिए तहफ़्फ़ुज़। और हमारी अवाम के पास इन तमाम चीजों में से एक चीज भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो तालियां बज रही हैं, ये तालियां यूं बज रही हैं कि ये अवाम, ये मोहतरमा कौसर साहिबा जो अपने आप को डिफेंड कर रही है अपनी पार्टी को, और पिछली दफा माशाल्लाह बहुत खूब इन्होंने अवाम के लिए एक फॉर्मूला पेश किया था कि अवाम दही रोटी से गुजारा अपना कर ले। तो जिस हुकूमत के नुमाइंदे दही और रोटी का फॉर्मूला गरीब अवाम को दें, आप उनसे मजीद क्या तवक्को कर सकते हैं? एक बात मैं आप पहले मेरी बात मुकम्मल होनी थी, मेरे 3 मिनट मुकम्मल नहीं हुए। आप प्लीज मुकम्मल करने दें, आप हौसला पैदा करें सुनने का, आपके लिए तो सब कुछ अच्छा होता है। आपने तो ये भी कहा था, आप तो अभी ये भी, जिस तरह मेरी बहन ने अभी फरमाया, अभी आप बोल रही हैं, आप हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें, अब्दुल्ला बलोच, हौसला करें। कोई मारूसी सियासत करने नहीं बैठी है, मैं मारूसी सियासत करने नहीं बैठी, आप अपना इलेक्शन जाके चले। आप दूसरी बात ये कि आप अमेरिकन स्कूल के हल्के में आप रहती हैं, उस हल्के में आप जाना भी पसंद नहीं करती, आप 80 की हवा खाती हैं, और आप गरीब आवाम की बात करती हैं। आप पहले उस हल्के में पहले सवाल का जवाब, मेरे टाइम मुकम्मल होने दें, इनके पहले सवाल का जवाब है, इनको मुझसे पता नहीं 1 साल से शिकायत हुई है कि मैं जो है मेरी रिहाइश पहले आपको जानती भी नहीं थी, मेरी रिहाइश की 1 साल पहले आपको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा प्लीज, इनसे सवाल है, इनका सवाल है, सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आपने हल्के में जाकर क्यों नहीं काम करती हूँ? बिलावल भुट्टो जरदारी की तैयारी में तकलीफ लेकर आए हैं, क्यों कहते हैं कि बिलावल लहरी से इलेक्शन लड़ेगा? ये बताएं, पहले जवाब दें, ये पहले ये जवाब दें कि नबील कबूल लियारी कभी एंटर हो सकते हैं? डिफेंस में बंगला है, क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? दिन पहले और इनसे वही अपनी कारकर्दगियां बताएं, इन्होंने आज तक कौम के लिए क्या खिदमत अंजाम दी है? अमेरिकन स्कूल चला रही हैं और बात पाकिस्तान की करती हैं। आपको मैं ये बताती चलूं राना मुबशिर साहब, लेट्स कम अप बैक टू द पॉइंट। मेरा मकसद ये है कि हम सोल्यूशन की बात करते हैं, हम सोल्यूशन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम इदारों को डीपोलिटिसाइज करना चाहते हैं। जैसे मेरी बहन ने अभी फरमाया कि ये जो है बजट के जो सोल्यूशन पेश हो रहे हैं, छठा बजट पेश हो रहा है, इसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई ये तो वो हुकूमत है जो अपने जमहूर के नाम पे अवाम को सजा तो दे चुकी है। कल सच्ची पड़ी जो साहिबा इन्हीं की इलेक्ट शुदा नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्ट शुदा इनकी वजीर थी, सच और हक की बात करने पे उनको इस्तीफा दे दिया गया। दीदी ये कौन जो है, मैं कहना चाहूंगी बजट के ऊपर, जमहूरियत का बजट के ऊपर अपना मंशूर चेंज किया कि मैं डिक्टेटर और मेरे सामने जो डिक्टेटर इमरान खान के मंत्री आप बात कर रही थी, वो नहीं, उन्होंने नहीं बात की। हमारी आवाज को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप लोग फेल हो चुके हैं, एडमिट कर लीजिए। आप लोगों ने 2000 अरब का 2000 अरब हमारे पास आ जाना चाहिए था इस वक्त टैक्स, लेकिन टैक्स कितना आया? 1400 अरब।
اور انشاءاللہ عمران خان کی جب حکومت آئے گی تو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 4000 ارب ٹیکس اکٹھا کریں گے اور غریبوں کو ان کا حق دیں گے. ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں, ہم بنا بات کرتے, اور آپ حوصلہ کریں, آپ حوصلہ کریں, انشاءاللہ آپ اس جماعت کے خلاف بات نہ کریں جس کے ساتھ کروڑوں نوجوان شامل ہیں. آپ اس جماعت کی بات نہ کریں بائیکاٹ نہ کریں, کروڑوں عوام موجود ہے, کی گونج بتا رہی ہے آپ کو. بیوی عوام آپ سے تنگ آ گئی ہے, عوام آپ سے تنگ آ گئی ہے. بیوی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگ کیوں بائیکاٹ کرتے ہیں؟ رانا مبشر صاحب شکریہ, آپ نے موضوع کیا, لیڈیز کو یہاں بلوایا گیا. میں کوثر صاحبہ سے پوچھتی ہوں کہ آپ پلیز ہمت تو کریں سننے کی, کس کس کی زبان بند کریں گی؟ آپ یہ دیکھیں کس کس کو بند کریں گی. ایک یہاں جو صاحبہ بیٹھی ان کو تو آپ چپ کروا دیں گی, لیکن یہ عوام ہے, دنیا ہے, ان کو کیسے چپ کروا دیں گی؟ ان کو حقیقت کر رہے ہیں, جو بجٹ میں کر رہے ہیں, جو آپ کے بولنے میں ان کو حقیقت کا آئینہ دکھانا بہت ضروری ہے. آج میں دکھاؤں گی, آپ دیکھیں, آپ کو سننے کی بھی ہمت پیدا, آپ بولے میں سن رہی ہوں, میں آپ کو پروف دکھاتی ہوں. آپ لوگوں نے جیسے کام کیا کریں گی, میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کے پروف اعلان لوگوں نے کیے, خودسوزی لوگوں نے کی. ہماری بہن نے جیسے فرمایا کہ یہ تو کاغذی کارروائی ہوئی, سب کچھ. کیا ممبر جو ہیں وہاں کے, تو ان کو پوچھنا نہیں, حق نہیں تھا, پوچھنا چاہیے تھا نا. وہاں پہ جو ہنگامہ ہوا اس میں اجلاس میں, اسی لیے ہوا کہ کوئی کسی سے نہیں پوچھا گیا. ملی بھگت کر کے اندر بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں خود ہی بنایا اور پیش کر دیا. آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو پتا ہے اپوزیشن ایک بجٹ دیتی ہے, شیڈو بجٹ آپ لوگوں نے کیوں نہیں دیا؟ اب اپوزیشن میں آپ نے شیڈو بجٹ کیوں نہیں دیا؟ نہیں, اس کا جواب دیجیے, آپ نے شیڈو بجٹ کیوں نہیں دیا؟ نہیں, اپوزیشن دیتی ہے بجٹ, شیڈو بجٹ دیتی ہے, آپ نے کیوں نہیں دیا؟ پھر کو این جی او نے دیا ہے, ہم ان کو شکایت ہے, آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے شیڈو بجٹ کیوں نہیں دیا؟ اپوزیشن کا کام ہے شیڈو بجٹ دینا. نہیں دیا, نہیں دیا, آپ جائیں چیک کر لیں. آپ لوگوں نے اور مکان کے دعوے کر کے شیڈو بجٹ نہیں دیا, آپ نے مکان کے دعوے کیے اور کیا دیا؟ پانی تک نہیں دیا. بند کر دیں, کیا کی ہے لوگوں کو لے کے کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں کرتی وہ دے دیتی ہے, پہلے اپنی پالیسی کو بیان کر دیتی ہے, گھر میں ڈال دیں. وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ شیڈو بجٹ دے سکے یا میرے خیال میں آپ نے سن لیا. تھوڑی بڑھے گا, میں یہاں دکھانا چاہوں گی. میں ضرور دکھائیں آپ سب کچھ. یہ کنڈا ایک پنجاب سی ایم کیمپ آفس فاؤنڈ, یہ ان کے شہباز شریف صاحب انہوں نے کنڈا کی بجلی لی ہوئی ہے, مینار پاکستان تک کو نہیں چھوڑا, مینار پاکستان تک کو نہیں چھوڑا. یہ میں نے کیا ہے, یہ میں نے نہیں کہا ہے, جیو میں آیا ہوا ہے. اوکے جی, اوکے ٹھیک ہے, ایک منٹ, میرے خیال میں پہلے میں لائیو کال لے لوں. لائیو کال, ایک لائیو کال ہے ہمارے پاس, لائیو کال ہے جیو کی نیوز ہے, جیو کی غلط بتا رہے ہیں. ایک لائیو کال لے لوں, لائیو کال لے لوں. یہ پرانی خبر ہے, پرانی خبر. یہ تو چور ہے, یہ چوری کا کام ہے, یہ آپ کے چوری کا کمال ہے. ایک لائیو کالر ہے, لائیو کالر ہے, ہاں لائیو کالر ہے جی میرے ساتھ. ہمارے پیپلز پارٹی جی کون؟ یہ مسلم لیگ نون کے نہیں. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں, ان سے کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی ہمیں بات کرنی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, مہنگائی ہماری کمر توڑ دی بھین. کیا چیز جی, آپ کی آواز نہیں آ رہی, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھین مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی بھین. اچھا, آپ کی کمر توڑ دی, مہنگائی نے کمر توڑ دی. جی جی. اچھا, تو کس سے بات کریں؟ حکومت سے بات کریں, حکومت کے نمائندوں سے بات کریں, یا کس سے بات کریں گے آپ؟ بھین حکومت کے نمائندے کیا کریں گے؟ اچھا, کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ جواب دے دیں. کالر ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ حکومت کے نمائندے کچھ نہیں کریں گے. کالر ہے بہت کچھ کیا ہے میرے بھائی, اب دیکھیے گا کتنا درست اور آگے ہو جائے گا. بہت مہنگائی, ہمارے ملک میں ایک فلڈ بھی آیا ہوا تھا,
फ्लड से गुजरते हुए इस वक्त हमारा मुल्क जो हमने संभाला है, बड़ी बड़ी बातों से किसी का पेट नहीं भरता। मेन चीज होती है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हमने एक्शन करके दिखाया। आज जो लोग आराम से अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं और इनकी तरह गलत लोगों की तरह पूरा पैसा नहीं खा गए। 2,500 ट्रक की बात की थी तहरीक इंसाफ वालों ने, अभी तक 1-2 ट्रक निजी चैनल पे दिखाए गए, बाकी सब ट्रक के पैसे खा गए। जितना भी ये सियासत कर रहे हैं वो सब चंदे के पैसों पे हो रही है सियासत। चंदा जो अवाम के नाम से कलेक्ट किया जाता है और खुद खा लिया जाता है। सुनामी की जो बात कर रहे हैं, सुनामी में पूरे मुल्क को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। आपने कर दिया, लोगों को खाना नहीं है, लोग ये भी प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है। मैं तो हर चीज प्रूफ से बात करती हूँ, मैं कोई भी अपनी मर्जी से बात नहीं कर रही, हर चीज का मैं प्रूफ बता रही हूँ। आप दही रोटी खिलाने पे मजबूर कर रही है। आपको पता है आपका मंशूर जो है ना, आपके मंशूर में एक चेंज किया इमरान खान साहब ने, क्या चेंज किया? एक बात, कॉलर से बात कर लेने एक सेकंड, मैं कॉलर से ही बात करती हूँ। मैं यहाँ पे गुजारिश करती हूँ इनसे कि बराए मेहरबानी इमरान खान की लीडरशिप के ऊपर बात करने से पहले देख लीजिए कि आपका कद कितना है, और मेरे लीडर से बात करने से पहले हमारी आवाम रोना पे आ जाएगी। पाकिस्तान नाइब बीबी, आप जरा बोलना चाहेंगे? देखिए, मफरूजों पे बात ना करें, अपने आप को साबित करके दिखाएं। बिल्कुल, मैं तो आपका प्रूफ आवाम के नुमाइंदे हैं। मैं अपने भाई की बात का, नो डाउट मेरा भाई आप सही कह रहे हैं कि आवाम की कमर टूट गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के फलसफे पर अमल करते हुए हमने आवाम की हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई है। मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में वडेरे और जागीरदार बैठे हैं, ये खून चूस रहे हैं आवाम का, क्योंकि ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ये जो महंगाई का सैलाब है, दरअसल हमारे मुल्क में कोई भी टैक्स देने को तैयार नहीं है। हमारे 18 करोड़ की आबादी में सिर्फ 19 लाख लोग टैक्स देते हैं। क्यों दे? इसकी वजह ये है एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारी, तो हमें चाहिए कि हर इनकम पे टैक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर से जनरेट हो रही है, चाहे वो सैलरी क्लास टैक्स दे रहा है। हमने सैलरी क्लास को टैक्स देने की मशीन बनाया हुआ है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, रोड पे एक क्वेश्चन ले नवाज शरीफ ने पहुंचा दिया। आपने फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करके आप लोगों ने इस मुल्क को एक सवाल, एक अपोजिशन अब आप असेंबली में अपना किरदार जो अदा कर रहे हैं, क्वेश्चन लेने देंगे आप? सेशन में अपने आप को साबित कर दिया कि आपने बजट टेबल ही नहीं तरह से। जी, एक मिनट खामोशी। आवाम को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि आप लोग पार्लियामेंट में बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या आप अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। आप अपनी कागजी बजट तैयार करके आप लोग ये समझते सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन आप ये देखें कि एक आम आवाम जो एक गरीब मजदूर है, वो मतलब क्या उसके तहफुजात हैं, क्या चाहता है, उसके पास बिजली नहीं है, 18 घंटे वो बिजली के बगैर गुजारा कर रहा है, सुबह से शाम तक वो बाहर निकला हुआ होता है, आते हैं वापस बिजली नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, गैस नहीं है, किस कदर मसाइल है। रहती हैं जी, मैं बेसिकली मैं सक्कर से बिलोंग करती हूँ। अभी आपने जो फ्लड लोगों की बात की, प्लीज आप मेरी बात सुनिएगा, आप प्लीज आवाम की बात सुनने का हौसला रखें, आप हौसला रखें, आप आवाम की बात सुनिए प्लीज। आपके बोलने से ये डिपेंड नहीं होता। बहन फंक्शनल लीड की है, मुझे ये बताएगा अगर इतनी बुरी हमारी पार्टी तो क्यों नहीं पार्टी से जाती है। मैं आपकी हमारी पार्टी ने ही साथ रखा हुआ है ना। अगर आप आवाम की बात सुनने का हौसला नहीं रखती तो आप पार्लियामेंट में बैठने का हौसला क्यों रखती हैं? आप किसी और की बात सुनिए, उनका हौसला रखिए, उनका जवाब दें। अभी आपने फ्लड से रिलेटेड लोगों की बात की, मैं सक्कर से बिलोंग करती हूँ, आप वहाँ बताइए अभी तक मेरी अपनी माँ की है,
आप बात सुनिए प्लीज। एक मिनट सवाल तो सुनने देना, एक मिनट। अच्छा मुझे ये बताएं कराची में कब 18 घंटे बिजली गई? मैं तो कराची में एक मिनट सवाल तो सुन लेना, आप सवाल तो सुन लेना, एक मिनट आप सवाल तो सुन लेना। कराची नहीं है, पूरा पाकिस्तान में गई है। एक मिनट मैंने आपको बताया मैं बेसिकली सक्खर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अब सक्खर में 18 घंटे लाइट जा रही है, उससे रिलेटेड सारे सिटीज में यही हालत है। आप अगर यहाँ बैठ के ये बात कर रही हैं कि इतने घंटे लाइट नहीं जा रही, आपके इलाके में नहीं जा रही होगी, सब इलाकों में जा रही है। लाइट जा रही है कि नहीं जा रही, बिजली जा रही है कि नहीं जा रही? 18 घंटे आवाज नहीं आ रही। गलत बात है, 18 घंटे नहीं जा रही। मैं चैलेंज से कहती हूँ 18 घंटे नहीं जा रही। हाथ खड़ा करके बता देना। नहीं जाती 18 घंटे नहीं जाती बिजली। नहीं 18 घंटे मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान में नहीं रहती, मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान में रहती है। पाकिस्तान में रहती है, कभी वस्तु से का दौरा करें, आप अगर इंटरनेट का दौरा करें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आप किस तरह बन रही है गर्मी में। हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया वो अंदरूनी सिंध में किया। हमारे अंदरूनी सिंध है बच्चे, हम सिटी में वो चीजें नहीं दे सकते जो हमने अंदरूनी सिंध में दिया है। अच्छा ये तो आप मुझे तो एक एक इलाके का पता है दीदी, मैं हर इलाके का मेरे दौरे किए। आप अपनी बातें रहने दे। राना मुबशर ने जो हमारे कायद के ऊपर टॉर्चर सेल बनाया था और हमारे कायद को 3rd डिग्री दिया था, उसकी तफ्तीश की मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, इस तरह से विक्टिमाइज करते हैं लोगों को, सियासी लोगों को। हमारी पार्टी एक मिनट कैंडली आप मेरी कुछ बात सुन लीजिए। आपने कराची की बात की तो मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, राइट। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ लाइट जाती है लेकिन आती नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ। सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सबको मालूम है। अभी मुझे कहें मैं आपको आज लाइट गई थी, मैं इसका जवाब देती हूँ। मेरे पास सब बातों का जवाब है, झूठ बात ना करें आप लोग। एक एक बात का जवाब है मेरे पास। मेरी बात सुनिए, जवाब आपके पास नहीं है। नहीं है, जवाब है। सब स्टेशन की जो लाइट गई थी, जो जला था, उसमें 40% लोगों ने बिजली के बिल पे नहीं किए, इसकी वजह से वो जल गया है। और फिर आप लोगों ने इमलाक को, हुकूमती इमलाक को, हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। ये एक गलत काम था बहुत ज्यादा। बिजली का बिल पे करना शुरू कर दे, ये मसले खत्म हो जाएंगे। कुंडे लगाना बंद कर दे, ये मसले खत्म हो जाएंगे। आप बिल पे करती हैं, टैक्स देना शुरू करें। अगर आवाम में टैक्स देना शुरू कर दे, मुल्क के मसले सच नहीं हो जाएंगे। अवामी नुमाइंदे कोई आसमान से उठ के नहीं आते, ये इसी मुल्क के आप लोगों ने ही हमें अलर्ट किया है। देखिए मोहतरमा, आपको सुनने के लिए आप मुझे ये बताइए, आप बिल पे करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। एक यूनिट के चार्जेस बता दीजिए। 100% करती हूँ। यूनिट के आप यूनिट के चार्जेस बता दीजिए। मुझे पता है, बता दीजिए। 12 यूनिट के चार्जेस पड़ती है, 12 रुपए पर यूनिट बाहर से पड़ती है, हमें होता है 7 रुपीज पर यूनिट। आप यूनिट का रेट बता दें, सबकी नजर पहुंचे ना, 3 यूनिट रेट बता दिए। 7 रुपीज पर यूनिट के साथ आपको हमें जो बिजली पड़ी है 12 रुपए पर यूनिट। गवर्नमेंट का एहसान है आपके ऊपर। यहाँ पे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। देखिए 12 रुपए पर यूनिट है। देखें यहाँ पे 7 रुपए का मुझे ब्रेक लेनी 5 रुपए आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर की यहाँ पे निजाम सारा धर्म भरम हो गया, जैसे कि हुकूमत का निजाम धर्म भरम हो चुका है। इसी तरह मुझे यहाँ पे हालात संभालने के लिए छोटी सी एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। छोटी सी ब्रेक के बाद आते आपकी लाइफ पहुँच